Good morning, students. Today I am going to introduce about the new chapter that is hydrogen. Now let us start. First, hydrogen. Symbol is H. This was discovered by Henry Cavendish in 1766. It was named inflammable air, but Lavoisier is a scientist which gave the name of hydrogen, that is hydra plus genius. Hydra means water and genius means producer. It occur in the free state as well as in the combined state. Okay. Now, what is the position of hydrogen in the periodic table? Hydrogen is the lightest element that having atomic number 1. Okay. Hydrogen is written in the form of molecular form. This is called as H2. ठीक है, इसको डाई हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं. Hydrogen resembles both alkali metals and halogens. Its position is anomalous. ठीक है. Now next is in modern periodic table it is located separately. Okay. When the hydrogen resemble with alkali metals, this is group number 1, and halogen, that is group number 17. At the same time, it differs from both in the characteristics. That's why hydrogen is called as Rugue element. ROGUE, Rugue element. Okay. It has been placed in the group 1 on the basis of configuration 1s1. Okay. But the position of hydrogen in the periodic table, that is not justified because it resembles both alkali metals as well as halogens. Okay. Now the next topic is resemblance with alkali metal. First is electronic configuration. Electronic configuration of hydrogen is 1s1. Sodium is also having 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Last electrons is present in the valence shell. Potassium having 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. In this case also one electron is present in the outermost shell, so this is called as valence electrons. So we can say that in the alkali metals like hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, all these are having one valence electron. Okay. Second point, electropositive character. These alkali metals shows electropositive character because it lost the electrons and to form a positive charge. Okay, like H positive, sodium positive, potassium positive, etc. Okay. Point number 3, it shows +1 oxidation state because
alkali metals have one valency, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या होगी, 1. सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो +1. पॉइंट नंबर 4, कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब जो अल्कली मेटल्स हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इस वजह से किसको रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड्स. ओके, जैसे हैलाइड्स हैं HCl, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, तो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, दिस इज कोवेलेंट, दिस शोज कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेते हो बेटा NaCl, देखो दिस इज अल्कली मेटल, दिस इज हैलोजन. ठीक है, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, इट फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट इज सल्फाइड्स. ये बाइनरी कंपाउंड्स भी बनाते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड सल्फर. ओके, सोडियम एंड सल्फर, इसको हम सल्फाइड आयंस की फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, सोडियम सल्फाइड. सो ये क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं. अब जो हाइड्रोजन है जैसे ये है, जब ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेता है, पॉजिटिव चार्ज. सेम इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स भी क्या करता है, जैसे सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन्स इज लॉस. सो दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने के बाद यूनी पॉजिटिव चार्ज आयंस शो करते हैं. ओके, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. 5th कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये भी लिख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है एंड अदर अल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं. ठीक है, बोथ हाइड्रोजन एंड alkali metals they have affinity for the electronegative elements. ठीक है, ये और भी बना सकते हैं, जैसे वाटर भी बना सकते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड्स भी बन सकता है. ठीक है, तो ये जो होता है, these are the resemblance of hydrogen with alkali metal. Now the next topic is resemblance with halogens. अब इस केस में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन की 1s1 है, फ्लोरीन की इसके अंदर भी जो है p शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस है. पोटाशियम की देखते हैं तो इसके अंदर भी p शेल के अंदर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस है. सो बोथ कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज non-metallic characteristics. Non-metallic means they shows electronegative nature by gain of hydrogen. ठीक है, तो like halogens and hydrogens that are non-metallic in nature. Point number 3, atomicity. What do you mean by atomicity? Means the number of atoms present in a molecules. So in the case of hydrogen, H2 means it is made up of 2 atoms of hydrogen. It means this is a diatomic molecules. Okay. Point number 4, formation of similar types of compounds like halides, CCl4, SiCl4, GeCl4. इसमें जो क्लोरीन है वो क्या है आपके सिमिलर है, लाइक दिस. जैसे ये C है, this is Cl, this is Cl, this is Cl, this is Cl. Okay, so in this case many of the compounds of hydrogen as well as halogens
हैलोजेंस में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। दीज शोज द कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर मीन्स these are formed by the mutual sharing of electrons. ओके, यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और म्यूचुअल शेयरिंग दोनों एटम्स की होती है, तभी जाके क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स। हाउ द हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम एल्कली मेटल्स। फर्स्ट बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। In this case, ionization enthalpy of hydrogen that is very high. In the case of जो अल्कली मेटल्स का केस है उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड, इट शोज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जो अल्कली मेटल्स है दैट आर टिपिकल मेटल्स where the halogen is a नॉन मेटल्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सारे मेटल्स हैं, बट हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। बट अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं मेटालिक नेचर शो करते हैं, बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज आयंस। पॉइंट नंबर 3, एटोमिसिटी। हाइड्रोजन डाया एटोमिक है, उसको हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स क्या है बेटा, मोनो एटोमिक, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है बेटा वो हमेशा कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। बट इन केस ऑफ alkali metals form ionic bond. Okay, here HCl is used. HCl beta hydrogen and chlorine, this is also non-metal, this is also non-metals, so it will form a covalent bond because the bond is formed by the mutual sharing of electrons by the two atoms. Okay, now the next difference from halogens. हैलोजेंस कौन से हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस केस में क्या है, लेस टेंडेंसी फॉर हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड आयंस फॉर्मेशन जो बनता है H नेगेटिव आयंस, उसकी टेंडेंसी कम है। हाइड्रोजन एटम्स हैव अ लेस टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ हाइड्राइड आयंस। देखो बेटा हाइड्राइड आयन कैसे बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तभी वो क्या बनाएगा, H नेगेटिव आयंस बनाएगा, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी ऐसा कम है, जबकि इन द केस ऑफ हैलोजेंस क्या करते हैं, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कोई भी है आपके पास फ्लोरीन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन करके क्या बना सकते हैं, F नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, एब्सेंस ऑफ अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कहीं पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो बेटा ऑक्साइड्स हैं हैलोजेंस के, हैलोजेंस नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और हाइड्रोजन जो ऑक्साइड है दैट इज़ न्यूट्रल। जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज़ न्यूट्रल, जैसे H2O2 है बेटा, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है। So these are the difference between the hydrogen and halogens. Okay, now the next topic is occurrence of hydrogen. In the case of hydrogen, hydrogen is the most abundant element in the universe. Okay, it is present in combined state in the form of water, coal, animal and vegetable matter, all the organic compounds that contains the hydrogen. Okay,
Now next is the isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. Hydrogen has three isotopes, that is protium. प्रोटियम को बेटा हम लिखते हैं 1 मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. ओके. प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, देखो ये ऐसे बनता है आपका स्ट्रक्चर. अगर आप बनाओगे तो दिस वन, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो जाएगा और ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो. ओके. नाउ सेकेंड आपका जो होता है दैट इज ड्यूटेरियम. इन केस ऑफ ड्यूटेरियम मास नंबर इज 2, एटॉमिक नंबर इज 1, दिस इज हाइड्रोजन. ओके. इस केस में हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास ये बनता है 1p एंड 1n और ये आपका जो है सर्कल बनता है और ये आपको ऐसे बनता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रीटियम. TRITIUM, ट्रीटियम. इस केस में क्या होगा, आपके पास 3 मास नंबर एंड 1 एटॉमिक नंबर. ये आपका 1p और ये आपका 2n और ये बनता है आपका. ठीक है. यहाँ आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके. In these isotopes, प्रोटियम इज़ नॉन रेडियोएक्टिव. इसका जो नेचर है वो नॉन रेडियोएक्टिव है. बट ड्यूटेरियम इज़ ऑल्सो नॉन रेडियोएक्टिव एंड ट्रीटियम इज़ रेडियोएक्टिव इन नेचर बिकॉज इट emit the beta radiation. Okay, so this is radioactive elements. Now one question arise, which isotopes of hydrogen is radioactive? तो आंसर क्या रहेगा, ट्रीटियम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. ओके. तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. इन दिस केस जैसे वाटर है बेटा, वाटर डेसोसिएट होता है H2+O2 में. ठीक है. सो जो हाइड्रोजन होता है दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इजीली. ओके. हाई प्योरिटी का जो हमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करना हो तो हम सिर्फ इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं. बट दिस मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर. दिस मेथड इज कैन बी यूज्ड ओनली एट दोज प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज़ चीप. ठीक है. तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉक. ठीक है. कॉक मीन्स कार्बन. जब कार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ करते हैं, स्टीम मीन्स वाटर के साथ करते हैं, तो बेटा क्या मिलता है, CO+H2. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है. अब ये क्या होता है CO+H2, दिस इज़ द वाटर गैस. ये क्या होती है, वाटर गैस होती है. नाउ द नेक्स्ट मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉक. ठीक है. दिस विल बी डन. दिस इज़ वाटर गैस. अब जो CO और H2 है, दिस इज़ वाटर गैस ना. दिस मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल. ओके. एंड ए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस और सिन गैस. इसको दूसरा नाम क्या है, सिन गैस. ओके. नाउ the process of producing syngas from the coal or coke, this is called as the coal gasification. okay. इस केस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो बेटा CO+H2, यहाँ पे हमने वाटर गैस लिया, इसमें वाटर को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, CO2+H2. ठीक है. CO2+H2 बन गया. ठीक है. दिस इज़ द वाटर गैस स्टीम. ये वाटर गैस है, ये स्टीम है. तो वाटर गैस स्टीम रिएक्शन भी बोलते हैं इसको हम. और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन. ओके. ये वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन भी है. इससे हम हाइड्रोजन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं.
So this is the so this is the preparation of hydrogen. देखो बेटा, फर्स्ट ये आपकी है, सेकेंड आपका जो है ये वाला है, एंड पॉइंट नंबर 3 थर्ड प्रिपरेशन में क्या होता है, when the zinc react with dilute HCl it will form a ZnCl2 plus H2. Okay, here hydrogen gas is also prepared. Now the fourth preparation of dihydrogen is when the zinc metal that react with a base NaOH, it will form sodium zincate Na2ZnO2 plus H2. Okay, so here hydrogen is also prepared. Okay, this is sodium zincate. This is metal, it react with a base. जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज. ओके, तो इस केस में हमारे पास ये हमने ये रिएक्शन जो है 10th क्लास में भी पढ़ी है. ठीक है, दिस इज द सेम रिएक्शन. सो दीज 4 प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, now the next topic is properties of dihydrogen. First beta physical properties. It is slightly soluble in water. Okay, it is highly combustible and should be handled carefully. It is the lightest substance and the weight of 1 liter hydrogen is 0.08 gram. Okay, so these are the physical properties. आप ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोजन इज नॉट अ वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 435.8 किलोजूल पर मोल. ओके, इस केस में बेटा हम लेते हैं फर्स्ट कंबशन. जब हाइड्रोजन को बार्न करते हो एयर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, वाटर बनता है. तो ये बार्न होती है विद अ पेल ब्लू फ्लेम. इट मीन्स ये पूरा कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ठीक है, कंप्लीटली बार्न होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद मेटल्स. The reactive metals like sodium, potassium, calcium and lithium, ये क्या बनाते हैं, it will form hydrides. देखो जैसे बेटा NaH है, ठीक है, KH है, Ca2H है, तो इनको हम हाइड्रोजन की फॉर्म नहीं बोलेंगे, इनको हम किसकी फॉर्म बोलेंगे, हाइड्राइड्स, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, पोटाशियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपका क्या है, हाइड्राइड्स बनाते हैं. Okay, now the next chemical property is hydrogenation of oil. In this case, vegetable oils that are polyunsaturated in nature. Polyunsaturated means the compounds which are made up of double or triple bonds. The carbon double bond carbon in oils that can easily undergo oxidation and the oil become rancid. Rancid means उसमें से स्मेल आती है, unpleasant in taste. ठीक है, टेस्ट में भी वो थोड़ा खट्टा लगता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आती है. सो दिस हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन क्या करता है, इसका मेन रोल क्या है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बट कम्प्लीटली. ठीक है, ये डबल बॉन्ड को किस में चेंज करता है, सिंगल में. ट्रिपल बॉन्ड आ जाए डबल में, डबल से फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, दैट इज रिएक्शन विद डाईनाइट्रोजन.
In this case, 3 hydrogen atom that will react with nitrogen, it will form ammonia 2NH3. और इस केस में जो आपका आयरन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ओके, तो यहाँ से भी हम क्या हाइड्रोजन क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम अमोनिया बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. पॉइंट नंबर 1, hydrogen is used as a reducing agent in the extraction of metals. Extraction of metals means metallurgy, means metals को ores से निकालना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं. अब ये ores होता है बेटा, ores से metals को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी. तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. Point number 2, it is used in the manufacture of vanspati fat, ammonia, metal hydrides, methanol, fertilizers like urea. Okay, so in this case is also used hydrogen. Point number 3, it is used in the manufacture of synthetic petrol. ठीक है, अदर यूजेस भी आप ले सकते हो. पॉइंट नंबर 4, liquid hydrogen that is used as a rocket fuel. ठीक है, rocket fuel. Now the next use, that is 5th, it is used in the manufacture of methanol, CH3OH. In this case, the water gas that react with CO plus H2, this is water gas, it react in presence of cobalt, it will form a methanol, CH3OH. Point number 6, the largest single use of hydrogen is in the synthesis of ammonia, NH3, which is used in the manufacture of HNO3 and fertilizers. Okay, so all these are the uses of hydrogen. Now the next topic is different forms of hydrogen. अब बेटा हाइड्रोजन आपने देखा है डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, तो आप उन फॉर्म्स का नाम, सिर्फ आपको नाम लर्न करना है. जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन. देखो फर्स्ट जो फॉर्म होती है दैट इज़ नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ब्रैकेट में लगा के यूज़ करते हैं, सिंपल फॉर्म. ठीक है, दिस फॉर्म इज़ मोर रिएक्टिव देन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी प्लस ZnSO4 बनेगा. ओके, सेकेंड जो आपका टाइप आती है डिफरेंट फॉर्म्स में, वो आती है आपकी एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एडजॉर्ब्ड, AD, एडजॉर्ब्ड होता है. एडजॉर्ब मीन्स सरफेस के ऊपर जो होता है. एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन. So this process is called as occultation, O double C